बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our lecture with the name of Allah who is most beneficent and merciful. In previous lecture we discussed about multicellular animals and plants, and in plants we discussed about Brassica campestris, means mustard plant, and in animals we discussed about frog. So let's continue our topic, and in frog we have discussed about morphology of frog as well as digestive system of frog. Now in digestive system, what we have discussed in digestive system, we discussed about digestion, and digestion is the process in which complex insoluble food particles are converted into simple and soluble particles by the action of enzymes. And the organs, the set of organs which involve in the process of digestion called as digestive system. And the digestive system, digestion in frog starts from stomach. The organs which are involved in digestive systems are buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, intestine. Intestine have two parts, small intestine and large intestine, and small intestine also have two parts, duodenum and ileum. And digestion starts in stomach in the frog. Mouth have no digestion, mouth have no digestion, and pharynx and esophagus are just tubes, and they are the passage of food. They just pass food from one organ to another organ. And in stomach, digestions start in this. Gastric juice are present in stomach, and gastric juice have HCl and pepsin enzyme, and pepsin enzyme act on protein and convert the protein into peptides or peptones, and peptides and peptones are small chains of amino acid, and protein is the long chain of amino acid. And HCl is an acid, hydrochloric acid. It kills bacteria and it kills germs, and it also make food acidic, and the food in the form of paste move from the stomach to the small intestine, duodenum. And in duodenum, as you know that pancreatic juice and bile juice are coming from the liver and pancreas, and this pancreatic juice have enzymes, three types of enzymes. I have told you before that amylase, trypsin and lipase enzymes which digest complex food particle into smaller food particles, and smaller food particles are glucose, amino acids, and fatty acids and glycerol. These are simpler food substances which are converted in the digestive system of frog. Frog के digestive system में ये convert हो जाते हैं. हमने diagram यहाँ पर आपको दिखाई थी. This is stomach, and after the stomach there is a small intestine, and after the small intestine large intestine is present, डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पहले एक्सप्लेन किया जा चुका है. यहाँ पर क्या मौजूद थी? स्प्लीन इज प्रेजेंट ओवर देयर,
and these are mesenteries. This is esophagus, ये esophagus है. This is the anterior end of stomach, and anterior end of stomach is called as cardiac end. This is cardiac end of stomach, and this is pyloric end, and this is the posterior of stomach, and posterior end of stomach is called as pyloric end. And what is this? This is stomach. Liver is present near the stomach. Liver is present, and a duct is arising from the liver which open into the duodenum. This is duodenum, and pancreas is present here between the stomach and duodenum, and a round body is present in liver. This is called as gallbladder. लिवर सिक्रीट्स बाइल. लिवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल सिक्रीट करता है, जो इस गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है. और बाइल डक्ट के थ्रू कहाँ पर आता है? ये ड्यूडीनम में आ जाता है. दिस इज पैनक्रियास. पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है. ये पैनक्रियाटिक जूस भी ड्यूडीनम में आता है. और ड्यूडीनम में आता है, यहाँ पर होता क्या है कि इसके अंदर 3 एंजाइम्स होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं. एंड व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर मॉलिक्यूल्स. एंजाइम्स आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विच स्पीड अप द बायोलॉजिकल रिएक्शन. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शन होते हैं वो उनको स्पीड अप कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं और लार्ज फूड पार्टिकल्स को, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को इन सिंपलर फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं. सो डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन है. डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. हेयर इन स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑल्सो टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन. एब्जॉर्प्शन किसकी होगी? इन डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स की. ये जो सिंपलर फूड पार्टिकल्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज किससे फॉर्म हुआ है? कार्बोहाइड्रेट से. कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में, और फैट या लिपिड जो है फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है. ये जो सिंपलर सब्सटेंसेज हैं जो कि इनसॉल्युबल हैं, फूड के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं, एब्जॉर्ब हो सकते हैं, दे आर एब्जॉर्बेबल पार्टिकल्स. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विलाई आर प्रेजेंट. एंड व्हाट आर विलाई? विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. दे इंक्रीज जस्ट द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. और इन विलाई के अंदर क्या मौजूद होता है? विलाई आर रिच इन ब्लड कैपिलरीज. इसके अंदर क्या मौजूद होती हैं? ब्लड कैपिलरीज होती हैं. एंड व्हाट आर ब्लड कैपिलरीज? ब्लड कैपिलरीज आर ब्लड वेसल्स. ये ब्लड वेसल्स होती हैं, बट दे आर थिनेस्ट ब्लड वेसल्स. बहुत ज़्यादा पतली ब्लड वेसल्स होती हैं. एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस इन दीज कैपिलरीज. जो भी मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो इन कैपिलरीज के थ्रू होता है. अब अगर आप सपोज करें कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट है, ये जितने भी पार्टिकल्स हैंगे ये यहाँ मौजूद है. हम एक ले लेते हैं, सपोज ग्लूकोज इज प्रेजेंट हेयर. एंड ग्लूकोज क्या होगा यहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो इसका इलियम का पार्ट है, दिस इज इलियम. ये इलियम का जो पार्ट है, इस इलियम के अंदर एब्जॉर्प्शन होगी. एंड दिस डाइजेस्टेड कंपोनेंट न्यूट्रिएंट विल मूव फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन. ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ चला जाएगा? ब्लड कैपिलरीज में चला जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स. यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. ये जो भी डाइजेस्टेड फूड है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, वाटर है, ये तमाम पार्टिकल्स कहाँ चले जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन से, इलियम से इसमें मौजूद ब्लड कैपिलरीज के अंदर चले जाएंगे. एंड ब्लड, यू नो, ब्लड इज ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल. ये ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल है हमारी बॉडी के अंदर जो थ्रू आउट द बॉडी मूव करता है और मटेरियल को एक पॉइंट से, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रांसफर करता है.
अब यहाँ ये ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं। ये डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल कहाँ चला जाता है, जितने भी डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं ये सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड के अंदर, ब्लड कैपिलरीज में चले जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या होगा, ये ब्लड आपको बताया ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल है, ये पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पूरी बॉडी के अंदर मूव करता है, और मूव करने के साथ साथ ये कहाँ जाएगा, हर ऑर्गन के अंदर मूव करेगा। और ऑर्गन के अंदर जब जाएगा तो आपको पता है ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज एंड टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल। टिश्यू किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं। तो सबसे पहले ये ब्लड जाएगा ऑर्गन में, ऑर्गन से टिश्यू में, टिश्यू से मूव करेगा ये सेल तक। फाइनली ये जो भी डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, फाइनली जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, वाटर, दीज ऑल मटेरियल्स विल मूव इनटू द सेल। Suppose this is cell and you know that cell is the smallest basic structural and functional unit of life, and cell have different organelles in it, and in the cell digested food particles आ रहा है, कहाँ से आता है, from blood, blood से आ रहा है, blood से कहाँ पे चला गया, ये सेल के अंदर चला गया। हम सपोज कर रहे हैं सिर्फ एक न्यूट्रिएंट को, ग्लूकोज सेल के अंदर आ गया, इनसाइड द सेल ग्लूकोज मौजूद है। अब ये जो प्रोसेस है यहाँ पर भी जो आपको बताया कि एब्जॉर्प्शन हो रही है, ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पे जाता है, अंदर ब्लड के अंदर, और यहाँ पे ब्लड से कहाँ पे आ रहा है, सेल में आ रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कौन से प्रोसेस के जरिए होता है ये, डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए मटीरियल एक्सचेंज होते हैं। एंड व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। जहाँ पे मॉलिक्यूलों की हायर कंसंट्रेशन है, जहाँ उनका अमाउंट ज़्यादा होता है, क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वो वहाँ से उस जगह पर मूव करते हैं जहाँ पर उनकी क्वांटिटी, उनकी अमाउंट, उनके मॉलिक्यूल कम होते हैं, वो वहाँ पर मूव करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है, चाहे वो इंटेस्टाइन में हो रहा हो या यहाँ पर सेल के अंदर भी। ब्लड किस प्रोसेस के थ्रू सेल में आएगा, ब्लड से ग्लूकोज किस प्रोसेस के थ्रू आता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज एंटर हो जाता है सेल के अंदर। सेल में आपको पढ़ाया था माइटोकॉन्ड्रियाज आर प्रेजेंट, एंड माइटोकॉन्ड्रियाज आर ऑर्गेनील्स विच आर कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रियाज क्या कहलाते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाते हैं। वाई, बिकॉज दे हैव enzymes and these enzymes are responsible to produce energy inside the cell। ये सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एंड सेल की एनर्जी किस लिए यूज होती है, टू परफॉर्म वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी एंड टू परफॉर्म वाइटल फंक्शंस ऑफ द सेल। सेल, ऑर्गन, बॉडी, हर एक के फंक्शन के लिए किसकी नीड होती है, एनर्जी की नीड होती है। तो यहाँ पे क्या मौजूद है सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियाज आर प्रेजेंट, ये यहाँ मौजूद हैं। ग्लूकोज इज कमिंग फ्रॉम द ब्लड एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रेजेंट inside the cell। Glucose react with oxygen, or you can say that oxygen react with glucose। कैसे रिएक्ट करेगी, with the help of respiratory enzymes which are coming from the mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स रिलीज करता है, उन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स के थ्रू यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगी, और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के नतीजे में रिजल्ट में क्या चीज बनेगी हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी इज रिलीज्ड इनसाइड द सेल। एनर्जी रिलीज हो जाएगी। फूड कहाँ से आ रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम से आ रही है, डाइजेस्टेड फूड आ रही है, सिंपल मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, थ्रू ब्लड आता है। किस तरह एक्सचेंज हो रहा है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू एक्सचेंज होता है। जब ये सेल के अंदर पहुंचती है फूड, ग्लूकोज, ऑक्सीजन ऑलरेडी इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, देन ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और यू कैन से ऑक्सीजन रिएक्ट विद ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम, और यू कैन से विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम विच आर कमिंग फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया। एंड रेस्पिरेटरी एंजाइम के एक्ट्स के जरिए क्या होगा, यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज फॉर्म्ड। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड।
दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के रिजल्ट में क्या चीज बन रही है, एनर्जी फॉर्म हो रही है. वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर वेस्ट प्रोडक्ट, दे आर वेस्ट प्रोडक्ट. ये कहाँ क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे. कहाँ से, यहाँ से इस सेल के अंदर से रिलीज हो जाएंगे. जिस तरह से ब्लड से ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर हुआ है, एज इट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर वेस्ट प्रोडक्ट एंड दे मूव फ्रॉम सेल इनटू द ब्लड. ये कहाँ चले जाएंगे, सेल से ब्लड में चले जाएंगे. ये रिलीज हो जाएंगे सेल से एंड विल बी इन्वॉल्व इन द ब्लड स्ट्रीम. कहाँ चले जाएंगे, ब्लड के अंदर चले जाएंगे. एंड एनर्जी विल यूज इन performance of different vital function. So the production of energy by the oxidation of food is called as respiration. This process is called as respiration. So what is respiration? Respiration is the oxidation of food in which energy is formed, or you can say respiration is the process in which energy is produced by the oxidation of food, and this reaction takes place inside the cell. ये जितना रिएक्शन है कहाँ पर हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है. पूरा प्रोसेस क्या कहला रहा है, रेस्पायरेशन कहला रहा है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेस्पायरेशन एंड रेस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग. रेस्पायरेशन कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस, cellular respiration and gaseous exchange. This respiration, this phase of respiration which is going on inside the cell is called as cellular respiration because it is going on in the cell, inside the cell. So let's move towards the respiration. आपको रेस्पायरेशन की डेफिनेशन बता दी. व्हाट इज रेस्पायरेशन? रेस्पायरेशन इज अ प्रोसेस. किस तरह का प्रोसेस है, इन विच एनर्जी इज फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, रेस्पायरेशन इन फ्रॉग, कि फ्रॉग में किस तरह का रेस्पायरेशन होता है. Respiration, the process of respiration consists of two phases. Number one is gaseous exchange. And other phase is cellular respiration. Gaseous exchange means inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide. क्या किया जाता है, जब रेस्पायरेशन होता है तो रेस्पायरेशन में ब्रीदिंग होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ब्रीदिंग होती है. एंड ब्रीदिंग इज द इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इन ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है, अपनी बॉडी में एंटर किया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से एक्सहेल किया जाता है, उसको आउटसाइड द इन्वायरमेंट ट्रांसफर कर दिया जाता है. हम ऑक्सीजन कहाँ से इनहेल करते हैं, या फ्रॉग अपनी ऑक्सीजन कहाँ से इनहेल करेगा, इन्वायरमेंट से. इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन मौजूद है, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की हाई कॉन्सेंट्रेशन है, और हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की, या फ्रॉग की बॉडी, किसी भी एनिमल या प्लांट की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन लो होगी. यहाँ पर भी गैसियस एक्सचेंज किस प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है, यानी कि मॉलिक्यूल अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं. तो गैसियस एक्सचेंज इज इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एंड सेल्यूलर रेस्पायरेशन, द प्रोसेस विच टेक प्लेस इनसाइड द सेल एंड एनर्जी इज फॉर्म्ड. यहाँ पर जो आपको पूरा रिएक्शन बताया था वो सबका क्या कहलाता है, सेल्यूलर रेस्पायरेशन कहलाता है. नाउ लेट्स मूव रेस्पायरेशन इन फ्रॉग. फ्रॉग में 3 टाइप्स का रेस्पायरेशन होता है. 3 टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन are present in frog, which is due to the mode of the gaseous exchange. जिस तरह का gaseous exchange है उसके हिसाब से हमने उनको नाम दे दिया है. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल 3 टाइप ऑफ रेस्पायरेशन क्या है, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, बक्कल रेस्पायरेशन एंड पल्मोनरी रेस्पायरेशन. Three types of respiration are present. 3 types of respiration takes place in frog.
cutaneous respiration, buccal respiration, and pulmonary respiration. और ये 3 टाइप्स क्यों, किसकी वजह से हैं? गैशियस मोड ऑफ गैशियस एक्सचेंज की वजह से, कि किस तरह का गैशियस एक्सचेंज हो रहा है उसी तरह का, उसी टाइप का रेस्पायरेशन है. क्यूटेनियस मीन्स स्किन. क्यूटेनियस रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्किन. आपको पढ़ाया था फ्रॉग की स्किन कैसे होती है? मॉइस्ट, थिन एंड मॉइस्ट स्किन होती है फ्रॉग की, और इसके साथ साथ स्किन के नीचे ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं. स्किन इज रिच इन ब्लड वेसल्स, सो ब्लड कैपिलरीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द स्किन ऑफ फ्रॉग. फ्रॉग की स्किन कैसी है? थिन, मॉइस्ट एंड रिच इन ब्लड वेसल्स, रिच इन ब्लड कैपिलरीज है. इससे क्या होता है? जब थिन है, मॉइस्ट है, पोर्स मौजूद होते हैं, एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन इजीली डिफ्यूज्ड होती है इनसाइड द ब्लड वेसल्स. जो बाहर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन मौजूद है, ये ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कहाँ चली जाती है? स्किन के ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है. बाहर जितनी भी ऑक्सीजन है, जब उसको इनहेल करना है, जब उसको ब्रीथ करना है, वो ऑक्सीजन डायरेक्ट, उसकी हमारी स्किन थिक होती है, यहाँ उसकी स्किन थिन है, मॉइस्ट है, उसकी वजह से नीचे ब्लड कैपिलरीज हैं, डायरेक्टली डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए उसकी स्किन में डिफ्यूज हो जाती है, ब्लड कैपिलरीज में जाती है, वहां से ब्लड के जरिए पूरी बॉडी को ट्रांसफर हो जाती है. इस वजह से यहाँ पे क्या है? गैशियस एक्सचेंज किसके थ्रू हो रहा है? स्किन के जरिए हो रहा है. क्यूटेनियस मीन्स स्किन के थ्रू हो रहा है. दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ रेस्पायरेशन इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पायरेशन. यहाँ से ही होगा, ब्लड के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, वो सब किस में आएगी? ब्लड के अंदर आएगी. ब्लड कैपिलरीज जो स्किन तक जब आएगी, तो यहीं पर जब ऑक्सीजन इनसाइड आ रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड द एनवायरनमेंट मूव कर जाएगी. दिस इज ब्रीदिंग, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन बाय स्किन. यहाँ पर दिस इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पायरेशन. कि क्यूटेनियस रेस्पायरेशन में किसके थ्रू गैशियस एक्सचेंज हो रहा है? स्किन के थ्रू होता है. किस तरह से होता है? क्योंकि वो थिन है, मॉइस्ट है, ब्लड कैपिलरीज मौजूद है, इजीली एक्सचेंज हो जाता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस हो जाता है. क्यूटेनियस रेस्पायरेशन किस सूरत में होता है? कब वो स्किन से ब्रीथ करता है? जबकि वो स्विमिंग कर रहा होता है. स्विमिंग करता है और हाइबरनेशन प्रोसेस में होता है. व्हाट इज हाइबरनेशन? फ्रॉग रेस्पायर विद इट्स स्किन ड्यूरिंग स्विमिंग एंड हाइबरनेशन. स्विमिंग आपको पता है क्या होता है. हाइबरनेशन पीरियड क्या होता है? रेनी सीजन में फ्रॉग लेज एग, फ्रॉग अंडे कब देता है? जबकि रेनी सीजन होता है, इनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, नंबर ऑफ फ्रॉग्स इंक्रीज हो जाते हैं. एंड इन विंटर सीजन फ्रॉग बरी देमसेल्व्स इनसाइड द मड. वो अपने आप को मड में छुपा लेता है और पूरी सर्दियां वो उसी मड के अंदर रहता है. विंटर सीजन के अंदर वो अपने आप को मड के अंदर, चिकनी मिट्टी के अंदर, गीली मिट्टी के अंदर रख लेता है, वहां छुपा लेता है. पूरे विंटर सीजन में दे बरी देमसेल्व्स इन द मड एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज हाइबरनेशन. ओके, सो frog respire through skin during swimming and hibernation. Next type of respiration is buccal respiration. मैंने आपको बताया था in digestive system, आपको I have told you before that inside the mouth there is a cavity and this cavity is called as buccal cavity. Okay, buccal cavity is present inside the mouth.
माउथ के अंदर एक कैविटी है जो बक्कल कैविटी कहलाती है, और अगर गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस हो रहा है किसके थ्रू, बक्कल कैविटी के थ्रू, देन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज बक्कल रेस्पिरेशन। एंड बक्कल कैविटी की भी क्या होती है, अंदर की जो लाइनिंग होती है उसके माउथ की, उसके बक्कल के अंदर जो बक्कल कैविटी की जो लाइनिंग होती है वो भी थिन एंड मॉइस्ट होती है, और थिन एंड मॉइस्ट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा थिन है ये भी, इसकी भी स्किन जो होती है वो थिन होती है, और यहाँ पर भी क्या मौजूद होते हैं, ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। स्मॉल में लिख देती हूँ, ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट हेयर इनसाइड द लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी। अब यहाँ क्या होगा कि जब फ्रॉग अपना माउथ ओपन करेगा, जब भी माउथ ओपन करेगा तो बक्कल कैविटी उसकी ओपन होगी। बक्कल कैविटी की ओपनिंग से क्या होगा, जो आउटसाइड यहाँ पर मौजूद है ऑक्सीजन, इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन है, वो कहाँ जाएगी, बक्कल कैविटी के इनसाइड जाएगी। बक्कल कैविटी के इनसाइड मूव करेगी तो इसकी लाइनिंग कैसी है, थिन और मॉइस्ट लाइनिंग है, रिच इन ब्लड वेसल्स है, रिच इन ब्लड कैपिलरीज है। तो ये कहाँ पर चला जाएगा ऑक्सीजन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन मूव इनसाइड द ब्लड कैपिलरीज। कहाँ चली जाती है ये, ब्लड कैपिलरीज के अंदर मूव कर जाती है ऑक्सीजन। और एज इट इज क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई इन कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द ब्लड कैपिलरीज एंड लो इन कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द बक्कल कैविटी। सो कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेशन टूवर्ड्स देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा थ्रू बक्कल कैविटी। ऑक्सीजन इनहेल हो रही है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो रही है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बक्कल रेस्पिरेशन। और बक्कल रेस्पिरेशन भी कब, किस कंडीशन में वो करता है, जबकि उसके पास ऐसी फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, जब वो अपने लंग से रेस्पायर करे तो फिर वो बक्कल कैविटी के थ्रू रेस्पायर करता है। सो आपको कितने बता दिए, 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस आर प्रेजेंट इन फ्रॉग, क्यूटेनियस एंड बक्कल रेस्पिरेशंस हैव बीन डिस्कस्ड। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन थ्रू स्किन एंड बक्कल रेस्पिरेशन थ्रू बक्कल कैविटी, एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन इज थ्रू लंग्स। सो frog have 2 lungs. Lungs are balloon-like structure which is present inside the anterior part of the frog. लेक्चर आपको दिया था ना। ये नहीं है मेरा। लेक्चर दी Okay, let's move towards the pulmonary respiration of frog. Pulmonary respiration of frog take place through lungs, and these are 2 lungs. 2 lungs are present inside the body of frog, and 2 lungs are present towards the anterior part. जो इसका anterior part होता है, anterior part की तरफ 2 lungs मौजूद होते हैं. They are balloon-like structure, balloon-like structures होते हैं. And the respiratory system, the organs, the set of organs which are involved in the process of pulmonary respiration are called as pulmonary respiratory system, which consists of number 1 is external nostrils, then internal nostrils, then buccal cavity, and then
larynx. Larynx divided into two bronchus, and each bronchus goes into lung. कौन कौन से ऑर्गन मौजूद हैं पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम में? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, इंटरनल नॉस्ट्रल, बक्कल कैविटी, लैरिंक्स, ब्रोंकस एंड लंग्स मौजूद होते हैं. एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स कहाँ मौजूद होते हैं? एट द नियर द स्नाउट. इसके स्नाउट के ऊपर ओपनिंग होती है. एक्सटर्नल ओपनिंग इज प्रेजेंट एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल नॉस्ट्रल. ऑन द हेड, इसके हेड के ऊपर नियर द स्नाउट, स्नाउट के करीब देयर इज एन ओपनिंग एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल नॉस्ट्रल. एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से एयर की जो जितनी भी ऑक्सीजन मौजूद है इनसाइड, जो कि इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, वो ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव इनसाइड द बॉडी टूवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन. कहाँ पर आ रही है? बाहर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बॉडी के इनसाइड आएगी. इनसाइड बॉडी के इनसाइड ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन लो होती है, कम होती है. तो किसके जरिए? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के जरिए ऑक्सीजन मूव करेगी और इन्वायरमेंट से कहाँ पर आ जाएगी? इनसाइड आएगी. जब इनसाइड आती है तो यहाँ पे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स आउटसाइड द बक्कल कैविटी मौजूद है, आउटसाइड द बॉडी मौजूद है. इनसाइड द बक्कल कैविटी देयर इज एन ओपनिंग एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज इंटरनल नॉस्ट्रल. ये जो ओपनिंग आपके पास दिख रही है जो कहाँ पर आएगी? बक्कल कैविटी में ओपन होगी. ये दिस वन, ये बक्कल कैविटी के अंदर ओपन होती है एंड दिस इज कॉल्ड एज internal nostril. Internal nostril is present inside the body, it opens into the buccal cavity, and external nostril is present outside. Oxygen will move from external nostril from here to there, from external nostril to internal nostril. External nostril से internal nostril में move करेगी. Then there is a buccal cavity. This is buccal cavity. Then oxygen will move inside the buccal cavity. कहाँ पर आ जाएगी? ये buccal cavity में आएगी. buccal cavity से आगे there is a tube and this tube is called as larynx. This is larynx and the opening of larynx is called as glottis. दिस इज द ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स. जो लैरिंक्स की ओपनिंग है वो क्या कहलाती है? ग्लॉटिस कहलाती है. इसके ऊपर एक लिड होता है, एक कवरिंग होती है एंड दिस लिड इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस. And then from external nostril to internal nostril, then buccal cavity, and from buccal cavity it oxygen enters into the larynx through the glottis, and larynx divide into two bronchus. These are two bronchus which is, ये आपको दिख रहा होगा, larynx divide हो रहा है. larynx is a tube, it is a passage of air, और यहाँ से ये two bronchus में divide होता है. bronchus is singular word and bronchi प्लूरल वर्ड. सो इट डिवाइड इनटू टू ब्रोंकस और ब्रोंकाई. यहाँ पे ये ब्रोंकस में डिवाइड होता है एंड ईच ब्रोंकस विल एंटर इनटू लंग. हर दोनों तरफ का जो ब्रोंकस है वो कहाँ पर एंटर होता है? लंग्स के अंदर एंटर हो जाता है और ब्रोंकस से फिर ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है? लंग्स में चली जाती है. ओके, सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हो रहा है? पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, देन इंटरनल नॉस्ट्रल, देन बक्कल कैविटी, देन मूव टूवर्ड्स लैरिंक्स एंड फ्रॉम लैरिंक्स टू ब्रोंकस एंड ब्रोंकस टू लंग्स. The outer surface of lung, this is the outer surface of lung. Outer surface of lungs are smooth. जो भी इसकी outer surface हैगी ये क्या होती है? Smooth होती है. But inside the lungs folds are present. And these folds are responsible to increase the surface area for the diffusion of oxygen. These are two lungs present inside the body of the frog. Outside जो है, जो इसकी outer surface है, ये तो smooth होगी. outer surface इसकी स्मूथ होने के साथ साथ क्या होगा कि इनर सरफेस जो है, इसकी इनर सरफेस के अंदर फोल्ड्स मौजूद हैं. इनर सरफेस के अंदर यहाँ फोल्ड्स मौजूद होते हैं. न्यूमेरस फोल्ड्स आर प्रेजेंट इनसाइड लंग्स एंड
दीज फोल्ड्स क्या करते हैं, जो फोल्डिंग होती है ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे होते हैं। इसके साथ यहाँ पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये दीज पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज एल्वियोलाई। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं, एल्वियोलाई कहलाते हैं। और इन एल्वियोलाई के अंदर क्या मौजूद होती हैं, ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। दिस इज ब्लड कैपिलरी। और ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या मौजूद होगा, ब्लड मौजूद होगा। ब्लड आपको पता है क्या है, ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल है, ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को एक्सचेंज करता है, ट्रांसपोर्ट करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब सब तमाम ऑर्गन से ऑक्सीजन मूव करती हुई आ रही है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, देन इंटरनल नॉस्ट्रिल, देन बक्कल कैविटी, लैरिंक्स, ब्रोंकस एंड देन लंग्स। जब लंग्स में आती है तो एल्वियोलाई के अंदर क्या मौजूद है, पहले तो क्या होगा, लंग्स फिल हो जाएंगे, फिलअप होके स्वेलअप हो जाएंगे, फूल जाएंगे। जब लंग्स फूल जाते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं, तो ये जो एल्वियोलाई है इसके अंदर भी ऑक्सीजन फिल हो जाती है। जब ये भी फिल होके बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं तो यहाँ ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं, थिनेस्ट ब्लड वेसल्स मौजूद हैं जहाँ पे एक्सचेंज होगा। और अब यहाँ जो मौजूद है ऑक्सीजन, लंग्स में जो आ रही है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन कहाँ मूव करेगी, ब्लड कैपिलरी के अंदर चली जाएगी, ब्लड में चली जाएगी। और एट दिस टाइम, इसी टाइम पर ऑक्सीजन जब ब्लड कैपिलरीज के अंदर मूव करेगी तो ब्लड के अंदर क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो वो सेल से लेकर आ रहा है। अभी आपको पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन बताया था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड आपको बताई ब्लड में आती है और फिर वो ब्लड कहाँ पर लेकर आ रहा है उस कार्बन डाइऑक्साइड को, इसमें क्या मौजूद है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, जैसे ही जब यहाँ डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन लंग से ब्लड के अंदर मूव करेगा, कैपिलरी में जाएगा, उसी टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड भी डिफ्यूजन के प्रोसेस से कैपिलरी से कहाँ आ जाएगी, लंग्स में आ जाएगी। ओके, ऑक्सीजन will move inside the blood and carbon dioxide will move from blood to the lungs. into the lungs कहाँ पर आ गई है, लंग्स में आ जाएगी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसी वे से, जिस रास्ते से ऑक्सीजन एंटर हुई है उसी रास्ते से ये आउटसाइड जाएगी। किस तरह, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ गई है, लंग्स से कहाँ जाएगी, ब्रोंकस में, ब्रोंकस से लैरिंक्स में जाएगी, लैरिंक्स से होते हुए बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से इंटरनल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल एंड देन आउटसाइड द बॉडी एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज गैसियस एक्सचेंज, inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide. This is gaseous exchange which takes place through lungs and this type of respiration is called as pulmonary respiration. अब ये आपको समझ में आ गया कि किस तरह से ऑक्सीजन अंदर आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई। जब इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, ये ऑक्सीजनेटेड हो गया, ये ब्लड क्या करेगा, इसको सेल तक लेकर जाएगा और पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था। ऑक्सीजन जब सेल में जाएगी क्या होगा, ये सेल के अंदर जाएगी, यहाँ पर क्या मौजूद है, ग्लूकोज मौजूद है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के नतीजे में क्या चीज़ बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, एनर्जी फॉर्म हो जाएगी। ओके, एनर्जी यूज्ड हो जाएगी और दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या होगा, उसी तरह रिलीज होके ब्लड में, ब्लड से कहाँ पर आएगा, लंग्स में, लंग्स से फिर इसी तरह से लंग्स से ब्रोंकस, देन लैरिंक्स एंड देन बक्कल कैविटी, इंटरनल नॉस्ट्रिल एंड एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग एंड टाइप्स ऑफ पल्मोनरी रेस्पिरेशन आपको बता दिया, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस, बक्कल एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन आर प्रेजेंट इन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग। क्लियर हो गई ये बात आपको। नाउ blood, as I have told you that blood is our transporting material. Blood एक transporting material है and this transporting material have a system. It moves inside the body, throughout the body, throughout the life, through a system, and this system is called as respiratory, circulatory system. Okay, the transporting system
inside the body is called as circulatory system, and frog have open type of circulatory system. अभी आपको बताया कि frog में blood किसके अंदर move कर रहा है, blood vessels के अंदर. Blood is enclosed in the vessels. ये वेसल्स के अंदर इनक्लोज्ड है, इट इज नॉट ओपन, ये ओपन नहीं है, खुला हुआ नहीं है. ब्लड किसके अंदर मूव कर रहा है, ब्लड वेसल्स के अंदर मूव कर रहा है. एंड दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एज ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम. सो फ्रॉग हैव ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम. And what is circulatory system? Circulatory system is the transporting system. ट्रांसपोर्ट जो किया जा रहा है बॉडी के अंदर मटेरियल्स को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, एक सेल से दूसरे सेल तक, तो ये कहला रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम. एंड फ्रॉग हैव ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम. द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स and heart. Okay, it consists of blood vessels and heart. सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉग का किस पर डिपेंड करता है, किस पे कंसिस्ट करता है, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स क्या है, वो वेसल्स जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, दे आर कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स. एंड 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन फ्रॉग. आर्टरीज, capillary veins, and third one are capillaries. Three type of blood vessels are present in circulatory system: arteries, veins and capillaries. तीनों क्या हैं, blood vessels हैं. Arteries are blood vessels which carry blood from heart. Arteries are blood vessels which carry blood from heart and transported it to organ. Arteries क्या करेंगी, हार्ट से ब्लड लेंगी, उसको कहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर देती हैं, ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट कर देती हैं. सो arteries are blood vessels which carry blood from heart and transported to the organ. जिस ऑर्गन तक भी पहुँचाना है ये वहाँ पर पहुँचाती हैं. And these arteries have oxygenated blood. कौन सा ब्लड होता है इनके अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स इट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. high concentration of oxygen is present in oxygenated blood. Arteries वो blood vessels हैं जो oxygenated blood को transport करती हैं. कहाँ से transport करती हैं, heart से लेती हैं और उसको organ तक पहुँचा देती हैं. So arteries are blood vessels which carry oxygenated blood from heart to organ, except pulmonary artery. सिर्फ किसके, pulmonary artery के अंदर, except pulmonary artery. pulmonary artery के अंदर oxygenated blood नहीं होता है. Okay, arteries are blood vessels which carry oxygenated blood from heart to organ. heart से organ तक उसको पहुंचा देती है, except pulmonary artery. And veins are blood vessels which draw back blood from organ to heart. organ से क्या पर कहाँ तक लेकर आती हैं, ये हार्ट तक ब्लड को लेकर आती हैं. यहाँ पर वापस ब्लड को लेकर आ रही हैं, ऑर्गन से हार्ट तक लेकर आती हैं. एंड दे हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. Deoxygenated blood means it is rich in carbon dioxide.
Veins are blood vessels which draw back blood from organ to heart, and they contain deoxygenated blood, means the blood is rich in carbon dioxide. इस blood के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की concentration ज़्यादा होती है और ये organ से heart तक blood को वापस लेकर जाता है, except pulmonary vein. एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, यहाँ अपोजिट है. पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मीन्स के यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है. पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मीन्स इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. ओके, सो 3 types of blood vessels are present: arteries, veins and capillaries. Arteries are blood vessels which carry oxygenated blood and it transfer blood from heart to organ, except pulmonary artery. And veins are blood vessels which draw back blood from organ to heart and it contain deoxygenated blood, except pulmonary vein. Now third blood vessels are capillaries. Capillaries are thinnest blood vessels which are present inside the organ. कोई भी organ है like stomach, kidney, intestine, कोई सा भी organ है, inside the organ this is kidney. inside the organ क्या मौजूद होती हैं? blood कैपिलरीज होती हैं, थिनेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा पतली ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं. एंड दीज थिनेस्ट ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड एज ब्लड कैपिलरीज विच आर प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्गन. एंड एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स, डिफरेंट मटीरियल्स का एक्सचेंज होता है कहाँ पर? टिश्यू, बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड कैपिलरीज. यहाँ पर टिश्यू से या सेल से जो भी जिस भी मटेरियल का एक्सचेंज होना होता है वो यहाँ ब्लड कैपिलरीज के अंदर होता है. सो ब्लड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस इन ब्लड कैपिलरीज इनसाइड द ऑर्गन एंड इनसाइड द टिश्यूज. ओके, नाउ circulatory system consists of blood vessels and heart. blood vessels आपको बता दें कितनी होती हैं, कैसी हैं, क्या डिटेल. now let's move towards heart. the main organ of circulatory system is heart. heart is the main organ of circulatory system. heart is a conical and muscular organ. Heart is a conical and muscular organ. किस तरह का है? कोनिकल शेप का होता है, मस्कुलर ऑर्गन है एंड इट इज़ ऑल्सो अ पंपिंग ऑर्गन. इट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द लाइफ. कंटिन्यूसली इट पंप्स ब्लड, मुसलसल कंटिन्यूसली ये ब्लड को पंप करता है. किस तरह पंप करता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, और यू कैन से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द लंग. एंड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ब्लड फ्लोज फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन एंड ऑर्गन टू हार्ट. जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेट करता है किसकी वजह से? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ हार्ट की वजह से. सो हार्ट इज अ कोनिकल, मस्कुलर एंड पंपिंग ऑर्गन. एंड द मेम्ब्रेन, हियर इज अ मेम्ब्रेन प्रेजेंट इनसाइड आउटसाइड द heart. The membrane which is present outside the heart, this membrane is called as pericardium. Heart is enclosed in a membrane and this membrane is called as pericardium. पूरे हार्ट के ऊपर क्या होती है? आउटसाइड एक मेम्ब्रेन होती है. ये इस मेम्ब्रेन में इंक्लोज्ड होता है, कवर होता है, ये इसको प्रिवेंशन देती है, प्रोटेक्ट कर रही होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. एंड दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज pericardium. And the contraction and relaxation, or you can say contraction and expansion of heart is called as heartbeat. ये इसकी हार्ट बीट कहलाती है और इस हार्ट बीट की वजह से हार्ट कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ फ्लो करता रहता है बॉडी के अंदर. नाउ फ्रॉग हार्ट कंसिस्ट ऑफ 3 chambers, 2 auricles. These are auricles
and 1 ventricles. It consists of 3 chambers, 2 auricles and 1 ventricle, left auricle, right auricle and ventricle. कितने चैम्बर हैं इसके अंदर? 3 चैम्बर्स मौजूद होते हैं फ्रॉग के हार्ट में. फ्रॉग हार्ट कंसिस्ट ऑफ 3 चैम्बर्स, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड ventricle. Okay, you can say this is right auricle and this is left auricle and this is ventricle. Okay, now these are 3 main chambers of frog heart. 2 accessory chambers are also present in heart. 2 accessory chambers are also present in heart of frog, and these 2 accessory chambers are truncus arteriosus and sinus venosus. Two accessory chambers are present, truncus arteriosus and sinus venosus. Okay, 2 accessory chambers are present in frog hearts. Number 1 is truncus arteriosus and sinus venosus. So, truncus arteriosus is present on ventral side of heart. This is left auricle, here is right auricle, and truncus arteriosus arise from ventral side of heart and it arise from ventricles. ventricle से arise होता है कहाँ से? और from ventral side से arise होता है. This is truncus arteriosus which arise from ventricle and from the ventral side of the heart. This is truncus arteriosus. It divides into 2 branches. आगे जाके ये 2 branches में divide हो जाता है and these 2 branches again divide into 3 arteries. Okay, truncus arteriosus is a accessory chamber which is present on ventral side of heart. It arises from ventricle and it divides into 2 branches and each branches again divide into 3 arteries. Number 1 is carotid artery. And you know that arteries are blood vessels which contain oxygenated blood. Systemic artery, and pulmocutaneous artery. Okay, truncus arteriosus is an accessory chamber which arises from ventricle, from the ventral side of the heart. It divides into 2 branches and both branches जो हर side की है वो 3 branches में divide हो जाती है and these branches are carotid artery, systemic artery and pulmocutaneous artery. And sinus venosus is the accessory chamber which arises
which is present on the dorsal side of the heart. This is heart, and this is sinus venosus, and this sinus venosus is present on dorsal view, or you can say dorsal surface of the heart. This is sinus venosus. It is a thin walled sac like structure. ये एक thin walled sac like structure होता है, एक sac की तरह का structure हैगा that carry deoxygenated blood from all parts of the body, collect करता है, that collect deoxygenated blood from all parts of the body. इधर उधर जितने parts हैं, जो anterior part या posterior part पर जितने भी organ मौजूद हैं, उन सब से deoxygenated blood कहाँ पर आता है? इस sinus venosus में आता है. So they are the chambers of heart. 3 are main chambers and 2 are accessory chambers. Main chambers are right auricle, left auricle, ventricle, and 2 accessory chambers are truncus arteriosus and sinus venosus. This is the picture of ventral view of heart and dorsal view of heart. This is the picture of ventral view of heart. In this, truncus arteriosus are present, which is arising from the ventricle. This is left atrium, this is right atrium, or you can say right auricle, left auricle. This is ventricle, and the truncus arteriosus is dividing into 2 branches, and each branch is further divided into 3 arteries: carotid artery, systemic artery, and pulmocutaneous artery. And this is the dorsal view of heart, in which accessory chamber sinus venosus is present. This is sinus venosus, which is present on the dorsal side of heart. Right and left, this is right auricle, this is left auricle, this is ventricle, and this is sinus venosus. यहाँ पर आपको कुछ वेन्स दिख रही हैं जो कि हम फर्दर वीनस सिस्टम के अंदर डिस्कस करेंगे. एंड दिस साइनस वेनस कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट जितने भी पार्ट हैं बॉडी के, उन सबसे ब्लड कहाँ आ रहा होता है? साइनस वेनस में आ रहा होता है. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द वर्किंग ऑफ हार्ट. वर्किंग ऑफ हार्ट, किस तरह से हार्ट वर्क करता है, किस तरह से इसके अंदर पंपिंग का प्रोसेस होता है. वर्किंग ऑफ हार्ट, जैसे कि अभी आपको बताया कि इसकी डॉर्सल साइड पर साइनस वेनस मौजूद है. ये साइनस वेनस है इधर.
This is a sac-like structure called as sinus venosus and this is called as accessory chamber of heart. ये आपके पास sinus venosus है. Okay, now right auricle, left auricle and ventricle मौजूद है. This sinus venosus collect deoxygenated blood. This sinus venosus collect deoxygenated blood from anterior part and from posterior part of the body. Anterior part and posterior part हर जगह से कौन सा ब्लड आ रहा है यहाँ पर? Deoxygenated blood which is rich in carbon dioxide. It collect deoxygenated blood. सारा deoxygenated blood जब sinus venosus में आ जाता है then it convey the blood to right auricle. अब sinus venosus से blood कहाँ पर जाएगा? Right auricle में जाएगा. So right auricle receives deoxygenated blood from sinus venosus. ओके, राइट ऑरिकल में कहाँ से ब्लड आ रहा है? साइनस वेनसिस से. साइनस वेनसिस में कहाँ से ब्लड आ रहा है? तमाम बॉडी के पार्ट से आ रहा है, इंटीरियर पोस्टीरियर तमाम पार्ट से ब्लड आता है. कैसा ब्लड मौजूद है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा ब्लड होता है? जिसके अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसमें. अब जब राइट ऑरिकल में साइनस वेनसिस से ब्लड आएगा तो राइट ऑरिकल एक्सपेंड हो जाएगा, वो वहाँ पर फैल जाएगा. जैसे जैसे उसके अंदर ब्लड एंटर होता जाएगा वो एक्सपेंड होता जाएगा. और देन क्या होगा कि जब राइट ऑरिकल के अंदर ब्लड आ रहा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम साइनस वेनसिस, एट दैट टाइम यू कैन से दिस इज राइट ऑरिकल. इसको राइट कह लीजिए और इसको लेफ्ट कह लीजिए. राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल में जब राइट में ब्लड आ जाता है, कौन सा ब्लड आ रहा है? साइनस वेनसिस से ब्लड आ रहा है. और कैसा ब्लड है ये? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. साइनस वेनसिस से ब्लड आता है राइट ऑरिकल में और कौन सा ब्लड है ये? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. राइट ऑरिकल फिल हो रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से. उसी टाइम पर यहाँ पर क्या होता है कि लंग्स से, ये लंग है, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. कहाँ पर? लेफ्ट ऑरिकल के अंदर. लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स. ठीक है, दोनों ऑरिकल क्या हो रहे हैं इस वक्त? फिल हो रहे हैं. राइट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिल होता है और लेफ्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिल हो रहा होता है. लेफ्ट के अंदर ब्लड कहाँ से आ रहा है? लंग से आ रहा है. जब लंग से आ रहा है तो ऑब्वियसली ये ऑक्सीजनेटेड होगा. अभी आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया था कि लंग में ऑक्सीजन आती है, फिर वो ऑक्सीजन ब्लड में जाती है. वो ब्लड कहाँ पर आता है? लेफ्ट साइड, लेफ्ट ऑरिकल ऑफ हार्ट में आ जाता है. लेफ्ट में आ रहा है ऑक्सीजनेटेड, राइट में आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. यहाँ साइनस वेनसिस से आता है, वहाँ लंग से आ रहा होता है. दोनों ऑरिकल क्या हो रहे हैं? एक्सपेंड हो रहे हैं, फैल रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर ब्लड फिल हो रहा है. जब ये फिल हो जाते हैं, कंप्लीटली फिल हो जाते हैं, तो इनके अंदर फिर कॉन्ट्रैक्शन होती है. ये सिकुड़ना शुरू होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड कहाँ पर आ जाता है? नीचे वेंट्रिकल में आ जाता है. ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड दोनों तरह का ब्लड कहाँ आ जाता है? नीचे वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है. अब ब्लड ट्रांसफर हो गया है, कहाँ पर? वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो गया है. वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? आपको बताया वेंट्रल साइड पर क्या मौजूद है? यहाँ ट्रंकस आर्टरियोसिस मौजूद होता है. अब वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाता है? ट्रंकस आर्टरियोसिस में जाता है. ट्रंकस आर्टरियोसिस एक्सेसरी चैम्बर है, वेंट्रिकल से अराइज होता है. कौन सी साइड से? डॉर्सल साइड से अराइज होता है. अब ये जितना भी ब्लड है, ऑल ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ऑल टाइप ऑफ ब्लड कहाँ जाएगा? ये मूव करेगा ट्रंकस आर्टरियोसिस में. दोनों तरह का ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड भी आ रहा है एंड डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रहा है. यहाँ पर कार्बोनेटेड भी आ रहा है और ऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड यहाँ पर आते हैं. किसके अंदर? ट्रंकस आर्टरियोसिस के अंदर आते हैं. ट्रंकस आर्टरियोसिस फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होती है और हर ब्रांच अभी आपको बताया 3 आर्टरीज में डिवाइड होती है
और ये फिर ब्लड कहाँ चला जाता है, ट्रंकस आर्टरियोसिस से इंफेरी आर्टरीज में। इंफेरी आर्टरीज में जाने के बाद ये आर्टरी क्या है, कैरोटिड आर्टरी, सिस्टेमिक आर्टरी एंड पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी। पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी। कहाँ पे ब्लड सप्लाई करेगी, अपर पार्ट या एंटीरियर पार्ट पर, जो हेड रीजन है, हेड है, नेक है, आईज है, ब्रेन है, इसको ये कैरोटिड आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी। और ये कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। सिस्टेमिक आर्टरी जो है लोअर पार्ट में या पोस्टीरियर पार्ट में, दोनों तरफ की सिस्टेमिक आर्टरीज आएंगी, कंबाइन होंगी। नीचे कंबाइन होने के बाद जो पोस्टीरियर पार्ट है, जितना भी सिस्टम मौजूद है, लाइक किडनी है, स्टमक है, गोनेट्स मौजूद है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद है, इंटेस्टाइन हैगी, इन तमाम जो ऑर्गन को, हाइंड लिम्ब को ब्लड सप्लाई करती है। और ये भी कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। थर्ड इज पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी, और पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी आगे जाके दो में डिवाइड होती है, पल्मोनरी एंड क्यूटेनियस आर्टरी में। और इसमें कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। क्यों, क्योंकि ये कहाँ जा रही है, पल्मोनरी लंग्स के अंदर जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेके लंग्स में जाएगी और लंग्स से फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो जाएगी और ऑक्सीजन आ जाएगी। सो पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सीजन इसके अंदर आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है। दिस इज द वर्किंग ऑफ हार्ट, किस तरह से हार्ट वर्क करता है। तमाम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, साइनस वेनेसिस में आता है। साइनस वेनेसिस से राइट ऑरिकल में जाता है। उसी वक्त लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आ रहा है, लेफ्ट ऑरिकल में। दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड कहाँ पर आएगा, वेंट्रिकल में आएगा। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ट्रंकस आर्टरियोसिस में मूव करेगा। ट्रंकस आर्टरियोसिस से आगे फर्दर आर्टरीज में ब्लड कन्वे हो जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पर हर ऑर्गन के बीच में वॉल मौजूद होते हैं, यहाँ वेल्व्स होते हैं, और ये वेल्व्स क्या करते हैं, बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं कि ये रिवर्स ब्लड ना हो, ये ऑरिकल से वेंट्रिकल में आए लेकिन वेंट्रिकल से ऑरिकल में नहीं जाए। वेंट्रिकल से ट्रंकस आर्टरियोसिस में तो मूव करे, लेकिन ट्रंकस आर्टरियोसिस से बैक करके वेंट्रिकल में नहीं आए। इसके लिए यहाँ क्या मौजूद होते हैं, वेल्व्स होते हैं, जो बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को कंट्रोल कर रहे होते हैं। नाउ we are discussing here about arteries. अब arteries क्या करती हैं, there is a proper system of arteries. There are many arteries which are supplying oxygenated blood to all parts of the organ. So the system which provide oxygenated blood from heart to different organs is called as arterial system. And the frog का है तो that is called as arterial system of frog. आर्टीरियल सिस्टम क्या है, द सिस्टम ऑफ आर्टरीज, द ब्लड वेसल्स which carry oxygenated blood from heart and transport it to different organs, and this system, the system of arteries, is called as arterial system. So let's move towards arterial system of frog. Okay, now this is the picture of arterial system of frog. बस ये एक्सप्लेन
So this is arterial system of frog, and what is arterial system? System of arteries is called as arterial system. This is heart, and this portion is truncus arteriosus, ये जो आपको नज़र आ रहा है, this is truncus arteriosus, and this is ventricle. यहाँ पे क्या है? Truncus arteriosus is dividing into three main arteries: upper carotid arteries, then systemic artery, and then pulmocutaneous artery. Carotid artery supplies blood to anterior part of the body like head, brain, eyes. These all organs are provided blood by carotid arteries. Carotid arteries इनको blood supply करती है. एंड सिस्टेमिक आर्टरी, दोनों तरफ की सिस्टेमिक आर्टरी हार्ट के पास जो है टर्न होती है, टर्न होते हुए ये हार्ट के नीचे आती हैं. दोनों तरफ की सिस्टेमिक आर्टरीज टर्न होती हैं, हार्ट से सर्कल करते हुए, इससे मुड़ते हुए हार्ट के नीचे आती हैं. नीचे आने के बाद ये एक एओर्टा बनाते हैं. दिस एओर्टा इज कॉल्ड एज डॉर्सल एओर्टा. एक मेन आर्टरी बनाती है, एंड दिस मेन आर्टरी और दिस एओर्टा इज कॉल्ड एज डॉर्सल एओर्टा. कैरोटिड आर्टरीज कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है ताकि ऑक्सीजन को हेड तक, ब्रेन तक, आइज तक, ईयर्स तक, टंग और जितने भी अपर पोर्शन है, अपर ऑर्गन है, उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है. सिस्टेमिक आर्टरी ऑल्सो कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड. एंड ये जो सिस्टेमिक आर्टरी है, ये नीचे आने के बाद जो पोस्टीरियर ऑर्गन है, पोस्टीरियर पार्ट के ऑर्गन है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, किडनी है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इन तमाम को ब्लड सप्लाई करती है. यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एक यहाँ आर्टरी निकलती है, मेन आर्टरी, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के पास जाके उसको ब्लड सप्लाई कर रही होती है. इसी तरह ये आगे आने के बाद यहाँ से 5 आर्टरीज निकलती हैं. ये 5 आर्टरीज बोथ साइड से अराइज होती हैं, और ये 5 आर्टरीज कहाँ पर जा रही होती है? किडनी के अंदर एंटर होती हैं. दीज आर्टरीज आर कॉल्ड एज रीनल आर्टरीज. रीनल आर्टरीज आर आर्टरीज विच सप्लाइज ब्लड टू किडनी, जो कि किडनी को ब्लड सप्लाई करती हैं. कितने पेयर्स होते हैं? 5 पेयर्स मौजूद होते हैं. पेयर की फॉर्म में होती है. 5 पेयर्स होते हैं जो किडनी में जाके ब्लड सप्लाई करते हैं. नीचे आने के बाद मजीद ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है, जो दोनों तरफ के लिम्स में जाती है, और ये हाइंड लिम्फ को ब्लड सप्लाई कर रही होती है. और ये तमाम ब्लड कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो आपको रेड कलर से शो किया जाता है. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा होता है. यहाँ पर किडनी में जो रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी ही आगे जाने के बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एंटर होती है, चाहे वो टेस्टिस हो या ओवरी मौजूद हो. यहाँ आपके पास ओवरी शो की गई है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाने के बाद यहाँ ब्लड सप्लाई करती है, और दिस आर्टरी इज कॉल्ड एज जेनाइटल आर्टरी. ये जेनाइटल आर्टरी कहलाती है, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती है. इसी तरह से यहाँ पर आने के बाद क्या होता है कि ये थर्ड रह गई पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी. पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी आगे जाने के बाद फर्दर डिवाइड हो जाती है. 2 ब्रांचेस में ये डिवाइड होती है, पल्मोनरी आर्टरी एंड क्यूटेनियस आर्टरी. वो जो कि स्किन को ब्लड सप्लाई कर रही है, ये क्यूटेनियस आर्टरी कहलाती है, और जो लंग्स के अंदर जाती है वो पल्मोनरी आर्टरी कहलाती है. सो पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, पल्मोनरी आर्टरी एंड क्यूटेनियस आर्टरी. और ये ब्लड किसको सप्लाई करती है? पल्मोनरी आर्टरी लंग्स को ब्लड सप्लाई करती है, और क्यूटेनियस आर्टरी स्किन को ब्लड सप्लाई करती है. और इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, क्योंकि वे फ्रॉग स्किन से भी रेस्पायर करते हैं. अभी आपको बताया क्यूटेनियस रेस्पायरेशन होती है थ्रू स्किन, गैसियस एक्सचेंज इसकी स्किन से भी हो रहा होता है. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब स्किन में आता है तो वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, क्योंकि एनवायरमेंट की ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है और ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड चली जाती है. इसी तरह से यहाँ पर क्या होता है? लंग्स में भी ऑक्सीजन मौजूद होती है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आता है लंग्स के अंदर तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है. आपको क्या याद रखना है? 3 मेन आर्टरीज याद रखनी है, जो कहाँ से अराइज होती हैं? ट्रंकस आर्टरियोसिस से. दीज 3 मेन आर्टरीज आर अराइजिंग फ्रॉम ट्रंकस आर्टरियोसिस. कैरोटिड आर्टरी, सिस्टेमिक आर्टरी एंड पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी अराइज होती है. आपको इसकी डायग्राम की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है. इसकी डिटेल आपसे नहीं पूछी जाती, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आती है, लेबल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आती है, एंड 3 मेन आर्टरीज के नेम आपसे पूछे जाते हैं. नाउ दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. वी हैव डिस्कस्ड 3 systems like respiratory system, heart and arterial system. Now note down your homework, and your homework is complete your copy work by content solution.
पेज नंबर 113, 114 एंड 115, 113, 14 एंड 115 पर जो कंटेंट सोल्यूशन में वर्क है आपको वो कंप्लीट करना है. दिस इज योर डायरी. Your home task is complete your copy work by content solution. By content solution, page number 113 से लेके 114 तक आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है. एंड ड्रॉ डायग्राम ऑफ pulmonary respiratory system, dorsal and ventral view of frog heart and arterial system ऑफ फ्रॉग. तीनों सिस्टम की आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है. पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम ड्रॉ करेंगे, डॉर्सल वेंट्रल व्यू ऑफ हार्ट ड्रॉ करेंगे, विद लेबल डायग्राम होनी चाहिए, लेबल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एंड आर्टीरियल सिस्टम ऑफ फ्रॉग की डायग्राम ड्रॉ करेंगे और इनकी बहुत अच्छी आप प्रैक्टिस भी करेंगे. नाउ मेमोराइज पेज नंबर 23, 24, 25, 26 and 27 of BCS Biology notes. आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं स्कूल की तरफ से उसमें आप पेज नंबर 23, 24, 25, 26, 27 मेमोराइज करेंगे, जिसमें आपको ये तीनों सिस्टम एक्सप्लेन करे हुए मिल जाएंगे. सो दिस इज़ योर होम टास्क. एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द क्वेश्चन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन 5 year. You can check the year of 2012. and heart is present, dorsal view and ventral view. इनकी भी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आती है. आपको बहुत अच्छी डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है और ये डायग्राम के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं 2012 एंड 2016 में. एंड आर्टीरियल सिस्टम की डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए आती है. आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा 2014 में. रेस्पिरेशन के लिए डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन भी आपको याद करने हैं और आर्टीरियल सिस्टम में मेन आर्टरीज, 3 मेन आर्टरीज भी आपको याद करनी है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद रिमेनिंग सिस्टम्स लाइक एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आई रिसेप्टर्स जो होंगे, सेंस ऑर्गन, आई, ईयर एंड स्किन ऑफ द फ्रॉग. अल्लाह हाफिज़.